Hello, welcome to Pinto Physics and YouTube channel. Today I will start lecture third, central force motions of a topic polar equation of orbit. What is the polar जो है equation of orbit and जो है now I will discuss what is the polar equation of orbit. Polar equation polar equation of orbit equal to F equals to minus k upon में r square. Polar equation of orbit F equals to minus k by r square. Potential energy corresponding to this force V r is equals to minus F dot dr. Put the value of F minus k upon r square dr. Minus plus outside negative sign take, then minus plus k upon me r square dr. Here this is the variable function, but k is the constant function here. Then if I integration in the integration a constant function presents, then you take outside of a integration k 1 upon r square dr. Here k आप r स्क्वायर को अगर नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो इन माइनस हो जाएगा dr. देखिए इनको इंटीग्रेट कीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx equals to x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो इन चीजों को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स. भी r is equals to k r to the power minus 2 plus 1, where n is the constant. Here minus 2 डोमिनेटर में गया, इसमें एक जोड़िए और minus 2 plus 1. Okay, then k upon में minus 1 upon में minus 1. Here minus 1 take left side, k r inverse, that means minus k upon में r. That means potential energy we will obtain. देखिए अगर हमें पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हमें अंडर अ फोर्स के तहत अगर फाइंड करना है तो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के बाद देखते हैं 1 बाई एफ इक्वल टू माइनस के बाई आर आ गया. देख सकते हैं कि फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी अगर इतना आता है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पोलर ऑर्बिट फाइंड करने का कोशिश करेंगे. उससे पहले हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम से रिजल्ट कितना आया था. इसके बाद टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं. we know that from previous lecture
angular momentum L equals to mr square theta dot, and theta dot is equals to L by m square. Now you know that. Now we know that kinetic energy is equals to half mv square, and kinetic energy velocity is written as plane colon coordinate. Then I will convert half m r v square, that means r dot k square plus r square theta dot k square. Kinetic energy. Now we put theta dot from angular momentum. We put kinetic energy equals to half m r dot k square and half m r square theta dot k square, and put the value of theta dot, that means angular velocity. Kinetic energy is equals to half m r dash square plus half m r square theta dot का put the value l square m r square होगा यहाँ पे m r square m कैंसिल होगा, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m r डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू होल स्क्वायर है, तो इन्हें भी हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट मेरा हाफ m स्क्वायर m, that means m r4 r square, that means r square l का होल स्क्वायर, that means l square. ओके l square अपॉन में 2m r square. Okay, kinetic energy. Now we will calculate a total energy. जरा साफ से लिख देते हैं इसको, क्लियरेंस होगा। देखिए यहां से थीटा का वैल्यू ले आइए हाफ m r स्क्वायर, थीटा डॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, l अपॉन में m r स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m r डॉट का स्क्वायर प्लस जो है हाफ m r स्क्वायर l स्क्वायर बाय m स्क्वायर r की पावर। Then cancel out this to this cancel, that means kinetic energy equals to half m r dot k square plus 1 by 2m r square l square kinetic energy. Now we write total energy
total energy. Energy is equals to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy here, kinetic energy. This equation, let one put the kinetic energy in equation B. That means half m r dot k square, half m r dot k square plus l square 2 m r square. Potential energy we will calculate it as V is equals to minus F dot dr, then minus K by R square dr. So we will get the result of this. Then integration of K by R square dr, then calculated minus K by R potential energy. Now we will put K by R, that means total energy. Okay. Now from the differential equation of orbit, now from differential equation of the orbit, CL equation of the orbit. Now from differential equation of the orbit, d square u upon v d theta square plus u equals to minus m f r upon l square u square. Okay. Now f r put the from the polar equation of orbit. Now from f equals to minus k upon r square. We put 1 by r equals to u, then f equals to minus k u square. Put the value of fr in polar equation of differential fr in
put the value of fr in differential equation of the orbit. Differential equation of the orbit. Then I will write d square u upon d theta square plus u equals to minus m fr minus k by u square minus k upon u square upon l square u square. Then d square u by d theta square plus u is equals to m k u square upon l square u square. No, sorry. Here, in term of k, then now here k is equals to minus in term of k minus r square fr. Now we will put minus fr upon me u square. Okay, then put the value in this equation. Here f r by u square we can written as minus k, so minus m minus k upon l square, that means d2u by d theta square plus u is equals to mk upon l square. Okay, now we solve this differential equation. We will get now d2u by d theta square plus u is equals to mk upon l square. This differential equation we solve it, we will get the result. We will get the result. Polar equation
polar equation of orbit r is equals to L square by mk upon 1 plus under root 2 1 plus 2 a dot L square by mk square cos theta. Okay, this is the polar equation of the orbit. हम इसको आपको बाद में सिखाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करके r का वैल्यू लाया जाता है. Here L square by mk, where L is equals to L square by mk. Latest rectum L square by mk. Latest rectum of conic section L square by mk. Latest rectum of conic section also is equals to under root 1 plus 2e upon L square by mk square eccentricity of the orbit of the orbit. ये हमारा eccentricity of the orbit हो गया. अगर नहीं दिखता है तो हम ऊपर कर देते हैं इसको. देखिए हमारा जो यहां से आएगा, ये जो रिजल्ट है ये ई से डिनोट किया जाता है, जिसे इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट बोलते हैं. इसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट जनरली, जो आई विल रिटर्न एज 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2e L square by mk square. Okay, or r is equals to L upon, now we will I will written as polar equation of orbit. Polar equation of orbit r is equals to L upon 1 plus under root 1 plus L cos theta. Okay, now after this equation I will discuss classification of orbit. Now one by one I see.
classification of orbit from polar equation of orbit we see that under a given force under a given force law orbit of particle depends given a force law orbit of particle depends on its energy therefore in present case energy eccentricity और ऑर्बिट देखिए वन बाय वन देखते हैं माइनस एम के स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर माइनस एम के स्क्वायर अपॉन में 2l स्क्वायर लेस देन जीरो e equal to 0 e greater than 0 e minus m k square और में 2l स्क्वायर eccentricity is less than 1 अब another equals to 0 equals to 1 e देखिए equal less than 1 equal to 1 equal to greater than 1 equal to 0 और ऑर्बिट फर्स्ट elliptical हो देखिए माइनस एम के स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर लेस देन 0 सेकेंड होगा पाराबोला थर्ड होगा हाइपरबोला अब इलिप्टिकल पाराबोला हाइपरबोला इलिप्टिकल ये सर्किल का केस है ये सर्किल होगा ये
ये पाराबोला बोला, और ये जो आपका होगा हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला। देखिए अगर दिस का देखिए एनर्जी लेवल माइनस एम के स्क्वायर बाई 2l² ग्रेटर देन एनर्जी, बट जीरो से लेस देन होना चाहिए, जीरो से लेस देन, दैट इज माइनस एम के स्क्वायर बाई 2l², और जीरो के बीच में एनर्जी जो राइज करेगा और उसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा, 1 से लेस होगा तो वो इलिप्टिकल कहलाएगा। दूसरा एनर्जी उसका जीरो हो, इसेंट्रिसिटी 1 हो तो पैराबोला कहलाएगा। और आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ई ग्रेटर देन जीरो होगा, और ई जो एनर्जी है जीरो से ग्रेटर होगा और 1 से इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगा तो हाइपरबोला बोलेंगे। अगर ई इक्वल टू माइनस एम के स्क्वायर और 2l², ई इसेंट्रिसिटी जीरो होगा तो हमारा सर्किल का केस हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। जनरल देखिए, नेचर ऑफ ऑर्बिट इज टू बी फाउंड जो नेचर ऑफ ऑर्बिट पाया जाता है, नेचर ऑफ ऑर्बिट इज टू बी फाउंड एफ इक्वल टू माइनस के अपॉन में r²। जो नेचर ऑफ ऑर्बिट जो पाया जाता है जनरली इज टू बी फाउंड एफ इक्वल टू माइनस के बाय r²। तो अब हम देखते हैं कि एनर्जी सेटिस्फाइड होता है कहाँ नहीं होता है। देखते हैं क्वेश्चन, दिस से रिलेटेड हम क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, a particle is thrown from earth surface with a speed v is equal to under root 1.5 m upon r, where m or n are mass and radius of the earth
earth respectively. What is the nature of path of the particle? What is the nature of the path of the particle? ठीक है, देखिए कोई पार्टिकल है, उसको अर्थ के सरफेस से v इक्वल टू √1.5 m/r से फेंका जाता है, जिसका मास और रेडियस, ठीक है, अर्थ का जो मास है m है, रेडियस r है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल? उसका जो इलिप्टिकल होगा या पाराबोला होगा या हाइपरबोला होगा या सर्किल होगा, वो हमें पता करना है। तो देखिए हम जानते हैं, ठीक है, कि जो फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स ऑन द पार्टिकल जो होता है वह F इक्वल टू माइनस कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, वी नो V इक्वल टू माइनस F/r/df। ओके, नाउ वी विल पुट, देखिए पुट करते हैं, तो माइनस पुट कीजिए, प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाला कैप, ये कांस्टेंट कैपिटल G m स्मॉल m बाय r स्क्वायर df। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन को बाहर कर लीजिए, ये माइनस था, ये माइनस था, कांस्टेंट फंक्शन को माइनस बाहर कर लीजिए, जो भी कांस्टेंट फंक्शन है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए क्या है, v इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कैपिटल G m इसको ले लीजिए, क्या होगा 1/r²। देखिए कैपिटल G m अपॉन में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, जिसका इंटीग्रेशन -1/r होता है। तो शॉर्ट भी थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, आ जाएगा पोटेंशियल। अगर हमारा पोटेंशियल आ गया तो अब हम एनर्जी में रख देते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। नाउ इधर रफ कर देते हैं, क्वेश्चन वाले पार्ट को। देखिए हम जो निकाले थे टोटल एनर्जी वो कितना था, एनर्जी इक्वल टू हाफ, सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ m/r², r डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m नहीं l² अपॉन 2m अपॉन में r² माइनस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल G m अपॉन में r। यही था, देखिए ठीक है, इतना ही था ना। हाँ इतना ही था, तो इसलिए हमको भी वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हमें जरूरत नहीं है ये करने की 1D में, हमें 2D में ही सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे तो देखिए हाफ mv² माइनस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल G m बाय कैपिटल G m बाय r, यहाँ पे पुट कर लीजिए, हाफ m, v का वैल्यू आपको दिया हुआ था, क्या हुआ था, v इज इक्वल टू 1.5 क्या दिया हुआ था, 1.5 कैपिटल G m अपॉन में r, पुट कर दीजिए।
देखिए यहां से पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिएगा तो 1.5 जी एम अपॉन में आर, ठीक है, अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस कैपिटल जी एम एम बाई आर। इसको निकालिए, क्या होगा, हाफ एम 1.5 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1.5 कैपिटल जी एम बाई आर माइनस कैपिटल जी एम एम बाई आर। देखिए क्या हो जाएगा, इनको अगर कैलकुलेट कीजिए क्या होगा, 1.5 कैपिटल जी एम एम अपॉन 2r माइनस कैपिटल जी एम एम बाई आर, क्या होगा, 2 एलसीएम ले लीजिए बाई आर। अब देखिए जो एनर्जी है, हमारा जो एनर्जी है वो कितना आ रहा है, माइनस 0.5 कैपिटल जी एम एम बाय, जो हमारा जो एनर्जी है वो टू, तो हमारा जो एनर्जी आ रहा है कितना आएगा, डेसिमल हटाएंगे तो -5 में 20 कैपिटल जी एम एम बाय आर, 5 4 जा 20 माने इक्वल्स टू -1/4 कैपिटल जी एम एम बाय, ओके, एनर्जी। आगे अब देखिए ये जो वैल्यू है एनर्जी का वो क्या है, -1/4 कैपिटल जी एम एम बाय आर है। ये क्या है, एनर्जी से क्या है, लेस देन है, एनर्जी से क्या है, लेस देन है। एनर्जी से अगर लेस देन है तो वो जो है आपको बताए थे माइनस, इससे पहले क्या बताए थे कि माइनस एम एम के स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर लेस देन ए लेस देन 0, 0 से लेस एनर्जी होगा, माइनस एम के स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर ग्रेटर देन ई लेस 0 होगा। अब उसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा, अगर इसेंट्रिसिटी भी लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑर्बिट कैसा होगा, ऑर्बिट जो होगा वह कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो लेस देन 0 है, डेट मीन जो हमारा ऑर्बिट होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है इस केस से देखिए तो इसका जो ऑर्बिट होगा वो कैसा होगा, जो है दिस रिजल्ट 0 से लेस एनर्जी है, तो क्या होगा, जो इसका ऑर्बिट होगा, पाथ होगा, सिंस ये लेस देन 0 है तो हमारा क्या होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल, पाथ ऑफ
the particle will be elliptical। कैसा होगा? पाथ ऑफ द पार्टिकल इलिप्टिकल होगा। अब देखिए वैसे हम ड्रॉ करते हैं पिक्चर। नाउ हम आज इस क्वेश्चन पे ही छोड़ते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट जो कैलकुलस वाला पार्ट है हम उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टुडे आई विल एंड दिस क्लास। हम इसी क्वेश्चन के साथ इन करते हैं और हमारा जो हम बोले जो थे आपको नेक्स्ट कैलकुलस वाला पार्ट उनको स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।